নমস্কাৰ টাইমিটাৰ দৰ্শকক মই জ্যোতি বৈশ্যই স্বাগতম জনাইছো আৰু এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো কিয়নো দিল্লীত পুনৰবাৰ এটা সপ্তাহৰ বাবে লকডাউন বৃদ্ধি কৰা হৈছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ আগতে এই কথা ঘোষণা কৰিছে এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা ডাঙৰ খবৰ দিল্লীত পুনৰ এসপ্তাহৰ বাবে লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে কৰোনা বৰ্তমান সময়ত দিল্লীত নিয়ন্ত্ৰণত নাই আৰু তাৰ বাবে অৰবিন্দ কেজৰিৱাল চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এই ডাঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে কিছু মুহূৰ্তৰ আগতে সংবাদ মেল পাতি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই কথা ঘোষণা কৰি কৈছে যে দিল্লীত পুনৰবাৰ এটা সপ্তাহৰ বাবে লকডাউন বৃদ্ধি পাইছে ইয়াৰ পূৰ্বে 6টা দিনৰ লকডাউন আছিল আৰু এতিয়া আগন্তুক সোমবাৰৰ পুৱা 5 বজালৈকে লকডাউন থাকিব অৰ্থাৎ কাইলৈৰ পৰা পুনৰবাৰ আন এটা সোমবাৰলৈ ৰাতিপুৱা 5 বজালৈকে লকডাউন থাকিব এটা সপ্তাহৰ বাবে পুনৰবাৰ এতিয়া দিল্লীত লকডাউন বৃদ্ধি কৰা হৈছে কৰোনা এতিয়া নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰত গৈছে দিল্লীত অক্সিজেনৰ অভাৱ হৈছে আইসিইউ বেডৰ অভাৱ হৈছে বহু লোকৰ মৃত্যু হৈছে বহু লোক জীৱন মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজ কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে আৰু তাৰ বাবে এই লকডাউনৰ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰিবলৈ দিল্লী চৰকাৰ এই মুহূৰ্তত বাধ্য হৈছে ইয়াৰ পূৰ্বে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে সংবাদমেল পাতি কৈছিলে যে হয়তো 6টা দিন লকডাউন দিলেই পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণত আহিব কিন্তু তেনেকুৱা নহল আৰু তাৰ বাবে দিল্লীত এতিয়া এটা সপ্তাহৰ বাবে লকডাউন পুনৰবাৰ লকডাউনৰ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰা হৈছে সোমবাৰে পুৱা 5 বজালৈকে এই লকডাউন থাকিব দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ আগতে আনুষ্ঠানিকভাৱে এই কথা ঘোষণা কৰি কৈছে যে দিল্লীত এটা সপ্তাহৰ বাবে এতিয়া পুনৰবাৰ লকডাউন থাকিব আমাৰ লগত অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ হে মন্তব্য আহি পৰিছে মন্তব্য আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই লৈছো और उसी के मद्देनज़र पिछले हफ्ते हम लोगों ने 6 दिन का लॉकडाउन लगाया था जो कि कल सुबह 5 बजे ख़त्म हो रहा है जिस तरह से तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं दिल्ली के अंदर उसको देखते हुए ये लॉकडाउन लगाना बहुत ज़रूरी हो गया था ये एक तरह से आखिरी हथियार है कोरोना के से डील करने के लिए लेकिन जिस तरह से केसेस बढ़ रहे थे ये आखिरी हथियार इस्तेमाल करना ज़रूरी हो गया था लेकिन अभी भी कोरोना का कहर जारी है और कोरोना कम नहीं हो रहा तो इसीलिए उसके मद्देनज़र कई लोगों के भी जनता के बीच में भी जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश की सबका मत यही है कि लॉकडाउन को भी और बढ़ाना चाहिए तो लॉकडाउन को दिल्ली के अंदर 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा रहा है अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक के लिए इस दौरान हमने देखा लॉकडाउन के दौरान की संक्रमण दर पॉजिटिविटी रेट जिसको कहते हैं ये लगभग 36-37% तक पहुंच गई आज तक इतनी संक्रमण दर हमने दिल्ली में तो नहीं देखी बाकी दुनिया भर में हो सकता हुई हो कहीं पे लेकिन 36-37% तक संक्रमण दर पहुंच गई पिछले 1-2 दिन से थोड़ी सी कम हुई है आज 30 के नीचे आई है 29 पॉइंट कुछ आई है मैं ये नहीं कह रहा कि कोरोना ख़त्म होने की दिशा में जा रहा है लेकिन ये अभी तथ्य हैं अभी और कुछ दिन देखना पड़ेगा हो सकता है बढ़ जाए हो सकता है कम हो लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कोरोना से हम लोगों को मुक्ति मिले पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा समस्या हो रही है दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी महसूस हो रही है हमने दिल्ली की इस वक्त ज़रूरत 700 टन की है और हमें केंद्र सरकार से 480 टन अलॉट हुई है कल 10 टन और अलॉट किया केंद्र सरकार ने 490 टन अब दिल्ली को अलॉट हुई है लेकिन ये पूरी अलॉटमेंट भी अभी दिल्ली में नहीं आ रही है इसका भी काफ़ी कम एक तरह से कल 330-335 तक ही दिल्ली पहुंची है तो 700 टन की जरूरत है इतने कोरोना की महामारी में दिल्लीर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाले কৈছে যে দিল্লীত বৰ্তমান সময়ত কৰোনা নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰত গৈছে আৰু সেইবাবে এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে আমি পুনৰবাৰ টাইমেটৰ দৰ্শকক জনাইছো দিল্লীত লকডাউনৰ সময়সীমা পুনৰ এটা সপ্তাহৰ বাবে বৃদ্ধি কৰা হৈছে ইয়াৰ পূৰ্বে 6টা দিনৰ লকডাউন আছিল কিন্তু কৰোনাৰ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ নোহোৱাৰ বাবে অক্সিজেনৰ অভাৱ হোৱাৰ বাবে দিল্লীত যি কৰোনাৰ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা হেয়া দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণত অহা নাই আৰু তাৰ বাবে পুনৰ এটা সপ্তাহৰ বাবে সমগ্ৰ দিল্লীতে লকডাউন ঘোষণা কৰিছে দিল্লী চৰকাৰে এতিয়া সোমবাৰে পুৱা 5 বজালৈকে দিল্লীত
লকডাউন থাকিব এই সময়সীমা বৃদ্ধি কৰিছে আৰু অৰবিন্দ কেজৰিৱালে কৈছে যে দিল্লীত যিমান অক্সিজেনৰ প্ৰয়োজন হৈ আছে সেই অক্সিজেন এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণত অহা নাই তেওঁ ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছে যাতে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহে কৰোনা নাইকিয়া হয় কিন্তু দিল্লীৰ পৰিস্থিতি অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে আৰু বাধ্যত পৰি পুনৰবাৰ এটা সপ্তাহৰ বাবে লকডাউনৰ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰা হৈছে ইয়াৰ পূৰ্বে 6টা দিনৰ লকডাউন দিছিলে কিন্তু এই সময়সীমা পুনৰবাৰ বৃদ্ধি কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে দিল্লী চৰকাৰ पिछले हफ्ते हम लोगों ने 6 दिन का लॉकडाउन लगाया था जो कि कल सुबह 5 बजे ख़त्म हो रहा है। जिस तरह से तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं दिल्ली के अंदर उसको देखते हुए ये लॉकडाउन लगाना बहुत ज़रूरी हो गया था। ये एक तरह से आखिरी हथियार है कोरोना के से डील करने के लिए लेकिन जिस तरह से केसेस बढ़ रहे थे ये आखिरी हथियार इस्तेमाल करना ज़रूरी हो गया था। लेकिन अभी भी कोरोना का कहर जारी है और कोरोना कम नहीं हो रहा तो इसीलिए उसके मद्देनज़र कई लोगों के भी जनता के बीच में भी जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश की सबका मत यही है कि लॉकडाउन को भी और बढ़ाना चाहिए तो लॉकडाउन को दिल्ली के अंदर 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा रहा है अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक के लिए। इस दौरान हमने देखा लॉकडाउन के दौरान की संक्रमण दर पॉजिटिविटी रेट जिसको कहते हैं ये लगभग 36-37% तक पहुंच गई। आज तक इतनी संक्रमण दर हमने दिल्ली में तो नहीं देखी बाकी दुनिया भर में हो सकता हुई हो कहीं पे लेकिन 36-37% तक संक्रमण दर पहुंच गई। पिछले 1-2 दिन से थोड़ी सी कम हुई है आज 30 के नीचे आई है 29 पॉइंट कुछ आई है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोरोना ख़त्म होने की दिशा में जा रहा है लेकिन ये अभी तथ्य हैं अभी और कुछ दिन देखना पड़ेगा हो सकता है बढ़ जाए हो सकता है कम हो लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कोरोना से हम लोगों को मुक्ति मिले। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा समस्या हो रही है दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी महसूस हो रही है। दिल्ली की इस वक्त ज़रूरत 700 टन की है और हमें केंद्र सरकार से 480 टन अलॉट हुई है कल 10 टन और अलॉट किया केंद्र सरकार ने 490 टन अब दिल्ली को अलॉट हुई है लेकिन ये पूरी अलॉटमेंट भी अभी दिल्ली में नहीं आ रही है इसका भी काफ़ी कम एक तरह से कल 330-335 तक ही दिल्ली पहुंची है तो 700 टन की ज़रूरत है इतने कोरोना की महामारी में उसके मुकाबले में 330-335 ही पहुंच रही है। ये दिल्ली जो ऑक्सीजन की कमी है दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन पहुंच नहीं रही है जगह जगह से जो ऑक्सीजन आनी है ये एक बहुत बड़ा कारण है जो ऑक्सीजन की कमी जगह जगह अस्पतालों में महसूस हो रही है। लेकिन हमारे ऑफिसर्स हमारे सभी मंत्रीगण हमारे सभी लोग रात भर पिछले कुछ दिनों में जब से ऑक्सीजन की कमी हुई है एक एक अस्पताल जहाँ जहाँ कमी है वहाँ सप्लायर से मैन्युफैक्चरर से ट्रक ड्राइवर से जो लेके आ रहा है उससे फ़ोन कर करके कोशिश कर रहे हैं कि समय पे अस्पताल में पहुँचे। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारी कोशिशें कामयाब रही कई जगह फेल भी हुए हम लोग और कई जगह हम समय पे ऑक्सीजन पहुँचाने में हमारी टीम कामयाब भी हुई तो